Good evening. Before I discuss what contributes to law and order challenges for police administration, before we discuss that, I would like you to appreciate one basic, very fundamental principle that most of the problems related to law and order, insecurity, conflict, or friction, most of the problems do emanate from one fact. What is that? It mainly emanates from the fact that all of us are constantly evolving. Individuals, groups, communities, nations, all of us are constantly evolving and evolving in different directions and with different pace. Heterogeneity is more common a principle than homogeneity. It was realized by our ancestors. I'm not talking about India context of world. In different parts of the world, people realized quite early that given this heterogeneity, wide range of likes, dislikes, and preferences, it is impossible to live together. Peaceful coexistence is not possible unless we discover something like law, administration, or something like, one other ways, means, social means, mechanism to control and check human behavior to the extent required. So, through law, through rules, regulations, religion, or value system, tradition, customs, what do we say? The things to exercise some control and check on behavior of people, so as to bring a basic minimum uniformity. To bring a basic minimum uniformity, some kind of standardization, some kind of uniformity. Hence, the outcome, a complex set of law, rules, regulations, ethical norms, and tradition, custom. They are things based on scientific knowledge, explorations, their acceptability, what to do and what not to do. There are so many things, complex interplay of so many factors, which have facilitated to some extent peaceful living. When you have so many things discovered and enforced, then we have so many wars, conflict, friction, battle. Just imagine, had it not been for these arrangements developed by mankind in the past, what would have happened? We would be fighting like dogs in the streets. In fact, we are doing so. Yes. But we think that we are comparatively better placed, there is no doubt. Law and order challenges for the police emanate from the fact that different groups, different communities, different individuals, all of us are evolving, but evolving with different pace. You have a group is more concerned with protection or conservation of tradition or age-old value system. We call them conservative. We call them conservative, which they would not like to hear from us because they perceive the things differently from us. Then, on the other hand, we have people who are constantly working on incorporating some new principles and values in the light of contemporary realities. They aim at redefining what is right and what is wrong. They very often make a very sharp departure from the existing value system tradition, and that's why they come in conflict with traditionalists. And then you have people occupying a position between the two, the smartest of the lot. They often try to strike fine balance between the tradition and modernity, and they believe in gradually steering the society towards what is desirable without any obsession
with traditional norms and the contemporary norms. What works has to be taken care of. What is so good today, it may not be equally good tomorrow. And what was so bad yesterday may be, relevant today and may be very good for tomorrow. So be ready to explore all the possibilities. Things are constantly evolving. But things are not evolving along a straight line. It is on cyclical path going on. One of the fundamental rules of nature. Everything is cyclical. So in the context of any society, if you want to see the performance of police administration, you will have to take into consideration not only what is going on inside the organization of police administration, but also what is happening all around. And this is not only for police administration, for any administrative body institution. You cannot make a realistic assessment of state of affairs unless you examine things in totality. Because every organization is deeply embedded in environment. It affects and it gets affected. And same is true for police administration. What kind of police administration you have in front of, it is not only the outcome of what is happening inside the police administration, the technology, training, competence. It is also the outcome of what kind of environment, what kind of society it is placed within. Because the most important component of any organization, including police administration, the most important component is the human and social content of that organization. The members of society enter that organization, how they are managing things. It is the dynamic component of any organization. It ensures that organization affects and gets affected, good or bad things. Therefore, when we think of law and order problems and challenges to which police administration is exposed to, we need to focus on factors, economic factors, social factors. What is not mentioned here, but even cultural factors can be taken into consideration. There are so many factors which work in collaboration with one another, create an environment of challenges and opportunities which police administration is exposed to. It is relevant for any country. Honestly, we are constantly evolving as an individual, group, community, but we are evolving with different pace and in different direction. And we try to ensure that through law, through rules, regulations, values, or several other factors, we try to ensure that unity of direction to some extent. Unity of direction, try to achieve. But basically, we are different from one another. Even twins are not similar. Absolutely biological and psychological file difference. It is against this backdrop that you need to appreciate the problems and challenges police administration is exposed to. You have forces of tradition on the one hand and forces of modernity on the other. You have political parties
inspired by socialist ideals. You have political parties inspired by capitalism. You have political parties not inspired by any ideals or ideology. You have political parties knowing not for what purpose they exist. Instead of contributing in positive sense, they believe in diffusing others. Hopeless case. Social structure, very much complex. Stratified structure. The upper one, the middle one, upper middle class, lower middle class. Disparity in income, wealth distribution. Disparity in terms of social status. Disparity in terms of growth and development. Different regions. Wherever there is a gap, wherever there is a gap, there is hope for movement. Everything moves from high pressure to on ऐसे ही नहीं आ जाता प्रेशर में डिफरेंस होता थिंग्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर सोसाइटी के अंदर भी तूफान क्या है सोसाइटी के अंदर लार्जली वो सोसाइटी अगर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी अगर बहुत ज़्यादा स्टैंड ऑफ लिविंग में बहुत ज़्यादा फर्क है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल controlling 80%, 90% of and 80 to 90% of population thriving on amount of it contribute fiction and a new challenge in front of economic disparity in not when distribution has not taken place. Political instability is there. Political instability. Political parties, different ideologies, different perception of things. They keep fighting against each other. Vote bank politics. And this friction conflict very often goes to such an extent that many of them end up losing sight of the larger interest of society and nation. Political world, that instability, that friction, conflict, different line of thinking, different ideologies that contribute to law and order challenges. Dharna, Pradarsan, protest. And these days, Dharna, Pradarsan, and protest assumed global dimension. Dharna, Pradarsan, very often you find that things are happening in one of the corners of your city, but the provenance of that can be located outside the territorial boundary of toolkit. Terms and terminologies have emerged in the last few. That somebody, handlers, they are managing things who are facing problems, but these problems are being orchestrated from a point of origin that lies beyond the territorial boundary of your country. Social unrest, changes in the social structure, changes in the value system, conflict between forces of tradition and forces of modernity, conflict of interest on the lines of caste, class, region, religion, place of birth. If you don't get anything, then you always get something like, that we are seeing there in Maharashtra, Mumbai. मराठी आना चाहिए ये तो मार खाओ कन्नड़ में बोलो कन्नड़ अगर नहीं बोलोगे तो फिर बेंगलोर फॉर्चुनेटली cities just imagine what happened it pervades all over the country that alone इस भाषा में बात करो हिंदी में नहीं
सिर्फ इतनी सी बात अगर ये फैल जाए हर जगह, आप सोचो पुलिस के लिए आप कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट। और पुलिस बेचारी बेचारी दूसरों को ही बेचारा बनाती है, बहुत कभी कभी खुद भी हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर संभाल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से मैनेजर का कॉल आया है, जल्दी आइए मुझे पीट रहे हैं क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती, ये घेर लिया चारों तरफ से। वहाँ पे वैसे ही कल बंगाल में भी चालू हो जाए कि बंगाली अगर नहीं आती है तो आप, समस्या बहुत। फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट along द लाइन ऑफ कास्ट, छोटी छोटी बात पे झगड़ा। आपने उस राजा को ऐसा क्यों बता दिया कि वो आपकी जाति के, क्योंकि उनका गौरवपूर्ण इतिहास है, वो इस समुदाय इस वर्ग के नहीं है। बात बात पे सोसाइटी इवॉल्व कर रही है धीरे धीरे, एक ट्रांजिशनल फेज है, लेकिन इस ट्रांजिशनल फेज बहुत डिफिकल्ट होता है। धीरे धीरे लोग एक लेवल पे जब अवेयरनेस सब चीज़ों से, ये हर बात पे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं, तब जाकर कुछ बात बनेगी। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ what police is. Law and order problem, law and order problem and challenges emanate from interplay of many factors, internal as well as external, social factors, economic factors, political factors. Internal factors, intra-organizational arrangement of police administration. You are exposed to new set of problems and challenges, and you are trying to deal with those problems on the basis of age-old anti-delivery ideas, technique, method, and process. You are still governed by Police Act, Indian Police Act 1861, not standing some reformative drive in of the metropolitan city, making police administration look more systematic, more modernized, or something, technology driven. But the greater part of India, things are not so well, not very much. Even in the cities today, if you have become the victim of any cybercrime, difficult. We have allowed the things to expand too much without having a place, without having appropriate means and mechanism to deal with the challenges arising out of that. सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन। और फिर जब फ्रॉड हो जाए, फिर जाओ थाने में, आप थाने वाले बोलेंगे वो कोई पोर्टल है, साइबर क्राइम को डील करता है, आप वहाँ पे एक कंप्लेन लिखिए, वहाँ पे मेल कीजिए। यहाँ पे आप जो कंप्लेन लिख रहे हैं कुछ होगा नहीं, हम तो कुछ करेंगे नहीं, करेंगे वही जो कुछ। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया। और आप कंप्लेन लिखाने जाएंगे ना, साइबर क्राइम कंट्रोल अथॉरिटी जो पोर्टल है, वो आप कॉल करते रहिए, 30 मिनट 35 मिनट बाद शायद वो उठा लेंगे, और उठाने के बाद वो आपसे ऐसी बात करेंगे बिल्कुल अनप्रोफेशनल, क्या हुआ, कैसे हुआ, अच्छा ठीक है और नाम बताओ। आपको एक दिलासा दे देंगे कि हाँ वो कंप्लेन, आप उससे पूछ कि आपने कंप्लेन लॉन्च किया है, कोई रेफरेंस नंबर तो देंगे जिससे हम बाद में पता कर सकें कि हमारे क्या हुआ, फ़ोन कट कर देंगे, उसकी मर्जी पे। एक बार फ़ोन अगर कट कर दिया 5 मिनट्स, आप थक हार के बैठ, आप फॉर्चुनेट होंगे किसी का काम अगर हो गया होगा, अदरवाइज अधिकतर लोगों की। तो वाटर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स जो भी आप फेस कर रहे हैं, दैट इज द आउटकम ऑफ not only what is happening right all around, the outcome of what is happening around and what is not happening that should have happened in police administration. Inside the intra-organizational factors and then external factors put together contributes to law and order problems and challenges. आप बीमार पड़ रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो वो केवल एक कारण से नहीं कि आपके अंदर क्या घटित हो रहा है। ठीक है, बाहर से भी बीमारी आ रही है,
बाहर से भी बीमारी आ रही है, पॉल्यूशन है, 50 तरह की वो भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। लेकिन अंदर आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसकी क्या स्थिति है तय करेगा। इम्यूनिटी सिस्टम अगर बहुत स्ट्रांग है तो काफ़ी हद तक वो ओवरकम कर लेगा चीज़ों को, और ये अगर वीक है अंदर तो बाहर की स्थिति को ओवर पावर कर जाएगी। ठीक ठाक है तो फिर ठीक ठाक ही बीमारी, मतलब कि जो कुछ भी होगा वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के इंटरप्ले की वजह से। इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स में केवल पुलिस को दोष देना भी उचित नहीं है और सोसाइटी को दोष देना भी उचित, दोनों की वजह से ये प्रॉब्लम बनता है और फिर पुलिस टैकल करके निकलती। और सच मानी तो पुलिस बस की है नहीं कि वो अकेले ही सब टैकल करे, ये बात भी समझनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स चैलेंजेस जो है वो किसी भी देश में आप केवल पुलिस नहीं छोड़ सकते, वो कोई अच्छी सोच अकेले टैकल नहीं कर पाएगी। सोसाइटी के साथ मिलकर सोसाइटी को पुलिस का साथ देना होगा, लेकिन पुलिस और सोसाइटी दोनों मिलकर करेंगे काम ये, इसके लिए जरूरी है कि दोनों के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये बहुत मुश्किल, जनता पुलिस पे भरोसा नहीं करती। एक आम व्यक्ति जो है उससे कहीं बात करके देखिए, कोई प्रॉब्लम अगर हो, आम व्यक्ति से अगर बात की कि पुलिस में नहीं, उसको पता है कि अगर आपका झगड़ा किसी नेता से हो गया या किसी रसूखदार व्यक्ति से अगर हो गया तो आपके क्या चांसेस है। कभी कभार कोई ऐसा सिंघम मिल गया कि आप साधारण व्यक्ति हैं लेकिन आपकी गाड़ी का टक्कर हो गया है किसी एमएलए एमपी या किसी नेता से हो गया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आजकल हैं, बहुत तरह के नेता हैं, कास्ट पे कई तरह से सब लोग भारत का स्वाभिमान बचाने निकले हैं और सब लोग समाजवाद को ही लेके चलते, ठीक है। और अलग अलग जाति समुदाय की जो है उसको तो भी वर्ड्स आप यूज कर, क्या चांस है। पुलिस ऐसे ही बैठती है कि बस कॉल जो दो इधर आए, इसका पावरफुल रहा उसकी तरफ, बहुत कम चांसेस है कोई आपको मिल, नहीं। जो गलत गलत है, सही सही है, किसी दबाव में आने वाले नहीं है। आप निश्चिंत रहिए भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती इनकी है। सामने एक्टिंग वो कर सकता है, एक बार आपको लगेगा भी कि दूसरे दिन पूरा खेल पलट जाएगा। आप पुलिस का तो रवैया इस ढंग का है, जनता क्या भरोसा करेगी उस पर, लोग जाते ही नहीं है और ठीक करते हैं, नहीं जाते हैं बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, उल्टा और आपको परेशान कर देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस में सबसे पहली चीज आप ये जान लें, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। ये आ रहा है कि हम सब लोग इवॉल्व कर रहे हैं, सब लोग चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पेस और स्पीड सबका अलग अलग है, और उसके बाद फिर डायरेक्शन भी अलग अलग है। और कुछ हद तक उसको स्पीड को एक साथ लाने में या डायरेक्शन को थोड़ा साधने में कि सब अलग अलग नहीं भागे, पूरी पूरे देश को एक साथ रखना है, कोशिश की। अगर वो सफल है तो ठीक, और जहाँ तक आप असफल हुए वहाँ तक सेंट्रीफ्यूगलिटी जो है, सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज बाहर की तरफ अलग अलग दिशा में जाने की, वो एक्टिव हो जाए। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है, इसमें इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, सब एक साथ मिलकर काम कर, इतने सारे फैक्टर्स हैं। मतलब इसको केवल पॉइंट वाइज समझ लेना उचित नहीं है। ये सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, चीज़ें एक दूसरे में मिल जाती हैं, एक नया आइटम बन जाता है। लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर। ऐसी घटनाएं आप देखते हैं सब कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बेकार केवल पुलिस के लिए नहीं बोलेंगे, पुलिस है, सोसाइटी है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स में। खुद मीडिया भी करती है, मीडिया भी करती है। आप देखते हैं कई बार किसी जगह पे कोई एक गांव है, कोई एक शहर है, कोई कस्बा है, कहीं पे कोई घटना घट गई, दो समुदाय के लोग थे, बस एंगल मिल गया, एक लड़का है एक लड़की है, कुछ हो गया, दिख दो चार लड़के छेड़छाड़ कर दिए, अब भाई आया, फिर मारपीट हो गई, ये वो। लोकल थाने में मामला गया, थाने में दो समुदाय का हिसाब किताब है, दोनों जगह से फोन आ गए, अब इसके ऊपर जलेबी बनना चालू है, स्पायरलिंग। जो मामला एक दिन में सॉल्व हो सकता था, पुलिस का इंटेंट अगर क्लियर होता है, सही होता, वो अपना काम कर रही है, राइट राइट रॉन्ग, लेकिन नहीं, पुलिस सीधे काम नहीं करेगी।
सामने बैठेगी, देखेगी, दोनों तरफ के, दोनों पक्ष के लोग आएंगे, इस तरफ से एक जाति के लोग आ जाएंगे, एक दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे समुदाय के लोग आ जाएंगे, फिर ऊपर से फोन आ जाएगा, फिर यहाँ से फोन आ जाएगा, फिर जो पता चला जो विक्टिम है उसके साथ गलत व्यवहार करके जो अक्यूज्ड है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, फिर विक्टिम वाले दमदार अगर होंगे तो 4 गांव उठ करके आ जाएगा ट्रैक्टर लेकर के थाने में, धुलाई पिटाई अच्छे से करेंगे, पुलिस की पहले से सुताई करेंगे। ठीक है, पहले हो जाएगा धूम धड़ाका हंगामा सब हो जाएगा, फिर उसके बाद कहानी जाएगा, ये होगा, फिर दोनों तरफ से लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, फिर और बड़े बड़े हैवी वेट नेता भी आ जाएंगे, उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर वो सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लेगा, क्या से क्या हो जाएगा, छोटे से मैटर से बहुत बड़ा मैटर पूरा फैला करके उसके बाद पुलिस वुलिस बुला लो, उसको बुला लो, पैरामिलिट्री फोर्सेज और ये सब चलो, उसमें मीडिया जो है, आप न्यूज चैनल को देखिए, दो चार जो अच्छे लोग हैं भाई वो अलग कर दीजिए, ठीक है भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे, अच्छे पत्रकार लोग हैं, बाकी अधिकतर की स्थिति क्या है कि बस वो उस पर अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेज आ गई हैं, ये हो गया फलाना हो गया ठिकाना, लेकिन वो आपको सीधी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि एक्चुअल में पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है, क्या हो, क्योंकि वो सीधी बात बता देंगे कि भाई एक लड़का एक लड़की ऐसे जाए तो ये हुआ था, मामूली सा मैटर था, सॉल्व हो जाता हो, वो बताएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, उनको उस चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाना है, उसके बाद आप 3 5 7 दिन तक सिर्फ यही चलता रहेगा, इसको गिरफ्तार किया गया, इसको पकड़ा गया, उन्होंने ऐसा कहा, इसने फिर 2 लोगों ने गलत बयानबाजी कर दी, उसके ऊपर मामला हो गया, नहीं आपने लड़की के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, एक दलित लड़की के बारे में क्या, दलित लड़के के बारे में क्यों कह दिया, जेंडर कास्ट क्लास सब ले लेंगे उसके अंदर, ठीक है, और पूरी जलेबी बन गई, उसके बाद 10 दिन बाद काम खत्म, कहीं और जलेबी बनेगी, आप हम सब भूल जाएंगे उस केस का फाइनली हुआ क्या, केस का हुआ क्या, कौन जा रहा है उस थानेदार के पास पूछने। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है, ऐसे तो एग्जाम की पॉइंट सब देखे समझे जाने सारे पॉइंट्स लिख देना, लेकिन बेसिक बेसिक बातें आप ये समझ लें, सब अलग अलग। मीडिया भी इवॉल्व कर रहा है धीरे धीरे, वो भी इंडियन मीडिया है, वो थोड़ा सा मैच्योर जब होगा तो उसे समझ में आएगा, ये मैच्योरिटी चाहिए कि कहाँ किस मैटर पर रिपोर्टिंग कैसे करनी, अनावश्यक बहुत ज़्यादा बात को फैलाए नहीं, कई बार आप अपने फायदे के लिए तो कुछ कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशनल गेन्स के लिए, वो देश के लिए घातक होता है, कम्युनिटी, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आएगी, अलग अलग इंस्टीट्यूट ग्रुप्स कम्युनिटी इंडिविजुअल सबके अंदर आई, तब जाकर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जो है बहुत काफ़ी हद, ये केवल पुलिस एक्शन से पैरामिलिट्री फोर्स, फिर ये आप वाटर कैनन ला करके और लाठी चार्ज करके आप इसको, आप क्रिमिनल्स को 2 4 पकड़ लेंगे, लेकिन क्राइम को करना अलग चीज़ है, आपको आपको उस पर विचार करना, रूट कॉज क्या है एंड हाउ दैट, फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, एंड देन इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स रिलेटेड टू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, all such factors put together contribute to law and order challenge. And in the wake of liberalization, privatization, globalization, इसमें भी डाल दो, ये तड़का तो हर जगह लगाना पड़ता है आजकल, और गलत भी नहीं है। अब क्राइम जो हो रहे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो आपकी कंट्री में हो रहा है, तो ये बहुत अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि आपके यहाँ हो रहा है आजकल, तो स्केल बहुत ऊपर चला गया ना, हो रहा, तो प्रॉब्लम सिर्फ वहाँ का नहीं है, उसके लोग कहीं और बैठे हुए, ग्लोबल डायमेंशन वो भी आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से कैसे चीज़ उनकी सपोर्ट कर रहा है। शाहीन बाग का मामला केवल शाहीन बाग का नहीं था, और फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, केवल फार्मर्स ही नहीं, पंजाब हरियाणा से आगे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं, के पीछे बहुत लोग थे, कहाँ कहाँ से सब, डोभाल साहब जानते होंगे, सॉल्व करते, तो हम लोग फॉर्चुनेट है कि ऐसे ब्रिलियंट लोग इस वक्त लीडरशिप में हैं, इन पर हम लोग भरोसा कर सकते, लेकिन वो ऊपर 5 7 10 15 या जो भी होंगे वो कहाँ कहाँ तक जाएंगे, गांव गांव तक, कहाँ तक सब करेंगे पुलिस, इतने साल की इतनी सारी समस्या ग्रास रूट लेवल तक, फिर भी जहाँ तक हो पाया वहाँ तक वो काफ़ी अच्छा, लेकिन ये तो पता है प्रॉब्लम सच, ग्लोबल लोकल इंटरफेस, ये केवल ट्रेड कॉमर्स बिजनेस में नहीं, क्राइम में भी, ग्लोबल लोकल, लोकल लेवल पे जो हीरो हैं उनको इंस्पिरेशन मिल रहा है ग्लोबल लेवल के लीडर, और ग्लोबल लेवल पे जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो सपोर्ट मिल रहा है लोकल लेवल। पहलगाम की घटना यही बतलाती, विदाउट लोकल सपोर्ट संभव नहीं, सेना ने जवाब दिया, क्या दिया कायदे से, आगे भी समझाते रहेंगे, ऐसा तो है।
अब आइए, अब इन सब प्रॉब्लम्स को देखिए. What contributes to law and order challenges? Social factors, economic factors, political factors, legal and administrative factors. मेनली ये चार है, बाकी आप एडिशन करते रहना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है, और पहले हमने कह दिया कि ये सारे फैक्टर्स हैं, ऑल दिस फैक्टर्स आर नॉट टू बी टेकन इन आइसोलेशन. अलग 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 स्कूल कॉलेज में से पढ़ते वैसे नहीं. देयर इज अ ब्लेंडिंग, यू नो, कैसे ब्लेंडिंग ऑफ ऑल सच फैक्टर्स. अब जैसे इसमें तो एकदम सिंपल है. सोशल फैक्टर्स है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस. लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. एजुकेशन नहीं है तो देयर इज अ लैक ऑफ सिविक सेंस, लैक ऑफ sense of responsibility as a citizen. You are not aware of your rights, you are not aware of your duties, you are not aware of you are not aware of the fact that a little mistake on your part, on your side, can contribute to much bigger problem for society and nation. So lack of education is not in conventional sense. But okay, education means that you are education, that you have a very healthy and very good perception of life, negative perception of life. That is education. I'm not talking about conventional, that kind of maturity. So lack of education and awareness to see that your individual interest lies in the larger collective interest. How? समझ में कुछ आता नहीं है, बस में आग लगा देते हैं, यहाँ तोड़ फोड़ कर देते हैं. तो lack of education and awareness what is right and what is wrong. यूट्यूब पे सब कुछ चलाना आता है और इतनी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बता रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश में संविधान खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा. इतने भोले हैं, समझ लिए, हो गया, निकल गए सड़क पे हंगामा करने. पढ़ाई लिखाई सारे भाई से, समझ में कुछ आता नहीं. ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई पीएचडी करने और इतना पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, देन इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. फैक्टर से आप समझो, इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. जहाँ भी इनइक्वालिटी होगी, कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन होगा, एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम. ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस, ये सब चीज़ें समझ ही नहीं है कि हमारी सोसाइटी क्या है, नहीं है क्या, हमारे लिए सही है क्या, हमारे लिए गलत है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमें सरकार के साथ कैसे मिलकर काम करना है. अरे आपको थोड़ी बुलाए स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू चलाने के लिए, कम से कम इतना तो करो कि आप गंदगी मत करो, और दूसरे करे तो उनको रोको. Focusing on your very narrow interest without realizing that all of us in togetherness constitute a inequality and disparity in income wealth distribution, exclusivist ideology and intolerance, discrimination, exclusivist ideology, your line of thinking that there is a group or community which is not the part of this larger society. Exclusivist ideology, you lack that integrative value system. Integrative value system. Don't believe in integral existence. That different groups, different communities, all of us put together constitute this beautiful. But ideology is exclusivist with a separative sense. You consider yourself superior to others, and that leads to friction and conflict. In the name of religion, the name of tradition or value system, your distinct social identity, you tend to undermine others and you encroach upon their interest. That will lead to conflict and friction. It requires a lot of maturity. And again, this is related to education. Exclusivist ideology, the outcome of lack of education, that we have not understood the life well. Heterogeneity is a very common thing. What is important that you learn to be able to live the difference, celebrate the difference. You enjoy your rights and you also respect the rights of others. You have centrifugal tendencies in structure. There are different castes, different communities, and different castes, different groups and communities in furtherance of their interest don't mind invading the interest of others. Social structure is stratified.
They guarantee that there will be conflict and friction because in this stratified structure, different groups and communities enjoy different set of privileges. You may have constitution at the top, supreme law of the land applies equally to all, but in reality, you still continue at many places. You continue with that discrimination that people belonging to particular group or community at the upper strata, they enjoy certain privileges that are not available to others, or there is a discrimination, the treatment meted out to people on the ground of their belongingness, particular group or community. Discrimination may take place not only against those who are at the lower level in the social strata. Discrimination may also take place against the upper ones. भ्रम में नहीं रहना चाहिए. हर समय ऐसा नहीं है. बस ऊपर से नीचे ही चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं है. किसी कोई मौका मिलना चाहिए. राजनीति हर जगह पे कई बार ऐसा भी होगा कि इसको आप अपर कास्ट कहते हैं, अपर स्ट्राटा, उसके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन होगा. तो कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट में. के बाद सब्सटेंस अब्यूज, ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में काफी कंट्रीब्यूट. ड्रग्स, अल्कोहल कंजम्पशन दैट impairs your sense of judgment. You start thinking of yourself as Alexander the Great. डर जाओ, भिड़ जाओ किसी से, and that contributes to problem. Drama, the street, call the police. अब गुरुग्राम वगैरह इधर जो नोएडा वेडा इधर आप देखते होंगे, जहाँ जहाँ टूरिस्ट ढंग की सोसाइटी है, क्लब बार ये सब जाना है, जाओ भी ठीक है, लेकिन आप मदहोशी में क्या क्या कर जाते हैं, पुलिस को देखना पड़ता है. नेक्स्ट, have perception of gender, caste, community. Perception of gender, caste, community. Perceptions differ. Perceptions differ, and very often a group of individuals, they try to impose their perception of things on others. You need to look at the things the way I look at such things. It's friction. मेरी नज़र से देखो दुनिया को, नहीं होगा. ठीक है, तो जेंडर, कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन. परसेप्शन ऑफ जेंडर, परसेप्शन ऑफ कास्ट, इतना घटिया परसेप्शन हो सकता है कि दैट विल ब्रिंग यू इन कॉन्फ्लिक्ट विथ एनी पर्सन हु इज नोन फॉर, हु इज रीजनेबली अ लॉजिकल पर्सन. समझने वाली बात ही नहीं. परसेप्शन ऑफ जेंडर, कास्ट, कम्युनिटी, देन डेफिशिएंट पेरेंटिंग. डेफिशिएंट पेरेंटिंग, पेरेंट्स हैं, पैम्पर्ड चाइल्ड, बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, मैं दुनिया का सबसे अच्छा डैडी, मैं दुनिया की सबसे अच्छी मॉम. और डेफिशिएंट पेरेंटिंग, बच्चे गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, आप बैठ के देख रहे होंगे और बाद में समस्या निकल के आ जाएगी. ये जो अभी रिसेंटली जो केसेस हुए, राजा रघुवंशी वाला मामला है, शर्मिष्ठा वाला मामला है, बहुत सारे मामले ऐसे जो हैं अलग अलग तरीके के. पहले उसका एक और भी केस था, नाम गलत हो तो प्लीज. इस तरह केसेस हैं. अब ये सब जो मर्डर हो रहे हैं खतरनाक, तो ब्लू ड्रम में डाल दिया जा रहा है, कुल्हाड़ी से मार दिया जा रहा है. ये सब डेवलपमेंट जो है, सब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है, ये क्या एक रात में वो लड़की इतनी खूंखार हो गई हो? अगर मान लो अगर, मतलब कि बहुत पहले से ही गलत दिशा में बच्चे जा रहे थे, लेकिन आपने ध्यान बिल्कुल. कई बार बच्चे ऐसे तो बन रहे हैं, मोहल्ले में नाम हो रहा है भाई, गन लेके घूम रहे हैं, चल रहे हैं, नेता बन गए, और पेरेंट्स जो हैं वो बड़े गर्व से तो पूरा चलता है जिले में, पता नहीं कि गोली खा जाएगा. गलत पेरेंटिंग वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती. सही टाइम पे आपने रोका नहीं. पैम्पर्ड
जो बोले वही दे दो, तो कुछ नहीं। इकोनॉमिक फैक्ट, uneven uneven development. Rich tends to become richer, poor tends to become poorer. One region of the country, one region of the country, right, and other region, very poor rate of growth, very poor. Regional disparity, that may also lead to conflict. And next is uneven development. Then organized crime. Organized crime, ये तो बताने की साइबर क्राइम हो, जो भी हो, insurgency, money laundering, crimes are more organized than ever. Criminals are using best of the two techniques, technology, and they outsmart law enforcement. Crimes are more organized, and that contribute to challenges. पुलिस अब तो जाके काफी तक कंट्रोल में, कई सारे ग्रुप्स ऐसे जिनके पास वेपन्स पुलिस है, मॉडर्न गैजेट्स उनके पास है, और आप चले लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम डील कर अरे पुलिस have organized crime, then corruption. Corruption contributes to law and order problem. Corruption takes place. Corruption means that some kind of injustice. Every single act of corruption invariably involves an element of injustice. And injustice means that somebody somewhere has been made to pay the price. Conflict on to take. Higher the level of corruption, the more the corruption, the lesser will be the trust and confidence between the system and the society. And the lesser the trust and confidence is deficient, means problems will. People don't trust you. So if you take any initiative, they begin with an assumption that this is there to adversely affect their interest and to maximize the interest of the people running the conflict and friction. Ability of the governments to pursue reforms has to do a lot with the level of trust and confidence which they have earned. Government अगर करप्शन फ्री है, अगर गवर्नमेंट में करप्शन नहीं, कॉन्फिडेंस अर्न कर लिया है, उसके बाद गवर्नमेंट अगर बदलाव या चेंज, तो फ्रिक्शन की संभावना कम होती है। लोगों का भरोसा होता है कि वॉट एवर चेंजेस आर गोइंग फॉर और चेंजेस गवर्नमेंट इज गोइंग ब्रिंग, दैट चेंजेस विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. This government is not going to do anything that will be the public interest. And that's why it becomes easier for that government to pursue reforms. Your ability to pursue reform, the intensity, pace, all the things depend heavily, among other things, it depends heavily on the level of trust and confidence that you have earned. And opposite side, if you have too much of corruption, lesser trust and confidence, then I don't need. For every change that you are willing to make, you will have to face the resistance, protest, dharna, and then you have economic instability, recession, depression, or inflation, price rise, all such things, frequent change, the policies of the government, the tax liability of the people, all such things create a kind of unrest, leads to a lot of agitation, protest, conflict, and that also problem. If economic instability is there, unemployment problems, rising high of the country, dislocated or displacement of them would move towards crime and other things. They have changing values, attraction towards hedonistic lifestyle. सब कुछ चाहिए, ऐसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रहे हैं देखकर सब कुछ चाहिए, लेकिन वो पाने के लिए टैलेंट चाहिए, टैलेंट नहीं, बाकी चाहत पूरी, तो हाउ टू ब्रीथ, शॉर्टकट, टाइम करते बहुत प्रॉब्लम्स हो, बहुत तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई तरीके से कंट्रीब्यूट
प्रॉब्लम में ये पता भी नहीं हो। रियलिटी शो, आफ्टर शोज जाके ज़्यादा टीआरपी के लिए, ज़्यादा कमाई के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट लोग देखें। तो भी कुछ ऐसा आपने कुछ गलत बोल जानबूझ कर एकदम स्क्रिप्ट के तहत ऐसे prepare करे कि पूरे देश में आग लग जाएगी, लेके हंगामा होगा, इतने लोग देख, मिलियंस लोग अपने फायदे के लिए, ये सब जो चल रहा है आजकल ये। और उसके क्या हुआ कि फिर बाहर बड़ा का हंगामा हुआ, स्टूडियो आके तोड़ बर्बाद हो रहा है, और फिर पुलिस को आना पड़ेगा। तुम पहले ऐसी बात बोल दो, बोलने के बाद तुम बताता है कि तुम जो बातें कह रहे हो समाज के एक वर्ग के लोग करेंगे, आ जाएगी, आएगी, फिर सेवा देगी तुम्हें, तुम तो भाग जाओगे पीछे, और फिर पुलिस ये सब चीज़, पुलिस का मिसयूज, तुम जानबूझ कर ऐसे ऐसे काम करते हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट, बहुत सारे लोग चेंजिंग वैल्यूज, अट्रैक्शन टू हेडोनिस्टिक लाइफ स्टाइल, इस तरह की लाइफ स्टाइल मटेरियल लाइफ की तरफ जाओगे, वैल्यू डेफिशिएंट तुम्हारा अप्रोच होगा, वैल्यूज लार्जर इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच, बेटी के बारे में नहीं सोच, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में तुम्हें फिक्शन कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन मुझे ये सब बातें कौन करती है लॉ एंड प्रॉब्लम में, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, ये आगे पॉलिटिकल फैक्टर को पता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स ज़्यादा कुछ तमाशा नहीं है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा धरना प्रदर्शन टेस्ट साजिश है। यहाँ पे पता चला हंगामा हो गया, उस हंगामा के पीछे वो पॉलिटिकल पार्टी है, उसने करवा दिया, वो करवा दिया, कुछ लीडर्स उधर चले गए, कुछ लीडर्स इधर चले गए, उनको मारने के लिए वो आ गए, ये सारे प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम। उसके बाद फिर है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, people with antecedents, they have entered political parties, and when they occupy any position of authority, imagine what, कई लोग इस वक्त भी कुछ पार्लियामेंट्री विधानसभा के अंदर बहुत सारे एमएलए का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एंटीसीडेंट, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, वो राजनीति करेंगे, क्रिमिनल माइंड जिसका होगा वो राजनीति भी करेगा, हिसाब से करेगा, आप समझ लीजिए कहाँ ये बात समझ में आती है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, they think only of the next election, they never think of next, बहुत दूर क्या करेगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन दैट लीड्स टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। बेस्ट एग्जांपल बंगाल ले लो, क्या होगा, संदेश खाली का मामला हो या मुर्शिदाबाद का मामला हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है। अभी रिसेंटली केस हुआ 24 परगना में भी हुआ, मतलब जहाँ पे घटना हो रही है दो कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, वहां से 100 मीटर पे पुलिस, 300 मीटर पे पुलिस स्टेशन है, मतलब कायदे से तो थोड़ी से भी हंगामा ऊंचे आवाज में कोई बातचीत करे तो पुलिस को पहुंच जाना चाहिए, लेकिन नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पुलिस क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि व्हाट इज द ऑफ पुलिस लीडर, कभी सोचा आपने कि पुलिस लीडरशिप का क्या मतलब है, पुलिस लीडरशिप ऊपर जो टॉप डीआईजी या कमिश्नर सब बैठे हुए हैं, जब फाइनली होना वही है, वही होना है जैसा पॉलिटिकल लीडरशिप कह देगी, बस नहीं एक्शन लेना है तो मत लो, यू हैव टू स्टैंड एज ए म्यूट स्पेक्टेटर व्हाटएवर हैपेंस। क्या मतलब है पुलिस, your ability to organize, your ability to plan out things, to draw a strategy, to improve the law and order condition, to its direction, getting things done, collecting feedback, अभी सब इंग्लिश की अच्छी अच्छी बातें, वर्ड सब सीखे समझे जाने, बहुत सारे ट्रेनिंग, सब करने के बाद फाइनल आउटकम क्या है, मिला क्या है उससे, पुलिस लीडरशिप से क्या मिला है, पुलिस लीडरशिप का स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं है लीडरशिप, लगभग सारे स्टेट्स में यही जैसा डायरेक्शन मिला, मतलब इस पे तो चर्चा और बहस होनी चाहिए। क्या आपके सामने घटना घट रही है, आप बैठ के इंतजार, जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक हम ही नहीं, क्या पुलिस मतलब पुलिस लीडरशिप को आपस में मीटिंग करके कुछ तय करना चाहिए, क्या आपके भी कुछ डिस्कशनरी पावर्स तो होंगे या नहीं है डिस्कशनरी पावर्स, क्या आप वाकई उसको, यू हैव कंप्लीटली जेनफ्लेक्टेड, यू हैव सबमिटेड टू पॉलिटिकल लीडरशिप। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए पुलिस जिम्मेदार, पुलिस 300 मीटर पुलिस है, पुलिस को आना चाहिए था प्रॉब्लम सॉल्व करके चलिए काम खत्म, नहीं,
पुलिस या तो भाग गई या बैठी है या चुपचाप डायरेक्शन मिला तो देख रही है, और यहाँ हंगामा हो गया जब काफी लूटपाट धूम धड़ाका आग लगाना, तो 4 लोगों को जान से मार देना सब हो गया। जब मीडिया में सारी बातें आ गई हैं, अब क्या किया जाए, तो पुलिस को भेजना है, तो ऊपर से कॉल आएगा अब थोड़ा जाओ, जो होना था वो हो गया। ऐसा लगता है कि पुलिस इसलिए भेजा गया कि यू प्रिसाइड ओवर द ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ वायलेंस सो दैट इट टेक्स प्लेस प्रॉपर्ली। बुरा लगेगा, लेकिन जो अच्छे पुलिस वाले, जो बहुत अच्छे पुलिसमैन है, अच्छे पुलिस है, वो क्षमा करे भाई, हम आपको अलग करके बात कर रहे हैं। अधिकतर की कहानी यही है। उसमें बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, political interference in administration, law and order problem. And if political interference is taking place in administration, for that not only political leadership, administrative leadership is also responsible. एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस अगर है पॉलिटिशियंस का, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, उसके पॉलिटिकल, आपकी पुलिस लीडरशिप, दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल। आपकी मर्जी के बगैर नहीं होगा, आपके कमजोर होने की वजह से है। सोशल अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट, ये तो इसके बगैर तो पॉलिटिक्स चलती नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं है। वीक गवर्नेंस, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, हर जगह योगी आदित्यनाथ जैसा विल नहीं। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस अभी बहुत एक्टिव नजर आती है, लेकिन ये देखने का विषय, ये देखने लायक चीज होगी कि अगर योगी आदित्यनाथ की जैसी पॉलिटिकल लीडरशिप है, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है, तो पुलिस कैसा काम कर रही है। उन्होंने दिखा दिया कि उसी पुलिस से वो क्या कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल विल। लेकिन रियल में मजा तब आएगा जब योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं है, कोई और सीएम है, फिर भी यूपी पुलिस वैसे ही काम कर रही है, तब आप समझेंगे कि कुछ इंप्रूवमेंट पुलिस में हुआ, लेकिन चांसेस बहुत कम है। आज इमेजिन कीजिए कि योगी जी हैं, यूपी पुलिस ऐसे काम कर रही है, क्या ये बताने की जरूरत है? 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, भगवान नहीं करे ऐसा होगा, अखिलेश यादव वो आ गए, वो बन गए समाजवादी पार्टी, जिस अब समझिए जिस उनके कार्यकाल में जिस ढंग से सब चल रहे थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, बाकी तो चर्चा। लेकिन आप सोचिए कि अगर जैसे ही लीडरशिप चेंज होगी, अगर आ जाए, तो फिर क्या यूपी पुलिस वैसे ही काम करेगी जैसे अभी कर रही थी? नहीं। मतलब कि टोटल जो परफॉर्मेंस है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल विल। अगर ऐसा है तो फिर पुलिस लीडरशिप की डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, तो आपके टॉप आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो भी तो एसएचओ और कांस्टेबल ही बना दिए एक तरीके, तो आपको जो बोला गया आप वही कीजिए, ज्यादा नहीं। क्या मतलब? वीक गवर्नेंस, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म, ये सब जो है, ये मेजर फैक्टर है। इंसर्जेंसी, टेररिज्म समस्या भी जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट पुलिस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाती, कि बिना आर्मी के सबको नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस contributes all such things, insurgency, terrorism, they contribute, or not a problem as well. Then you have legal and administrative factors. Police agar well trained be, even if you have a professionally competent technique, method, process, but police administration has to function under a law 100 years old, more than 100 years old. Opposite, every law has a context of time and place. A law which was enacted based on the appreciation of realities 100 years, 120 years ago, how can that law hold equal amount of relevance today? And we are expecting police administration to function on the basis of such law. That will also contribute to law and order problem, because police response of the police will be deficient, not because it is not competent, but more because of number of shackles that will be put on its body by an obsolete law. Corrupt and inefficient administration. Corrupt and inefficient administration means that there will be gap between performance of administration and expectation of society. And if there is a gap between performance and expectation, it means there will be conflict, friction. Again, another law and order problem. घटना घट जाती है, विक्टिम्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, ऐसे केसेस
सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है कि कायदे से एफआईआर दर्ज करिए आप, शाम 5 बजे तक ये होना चाहिए कार्रवाई। तो आप सोचिए कि एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए तो पुलिस है। ऐसे केसेस पास में हुए। करप्ट एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर ये भी है करप्ट एंड इनइफेक्टिव जुडिशरी, खास करके जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हालत है। करप्शन वहां बिल्कुल है। अब तो आप खुल के बोल सकते हैं हाई कोर्ट तक, सुप्रीम तक है। इतना सारा जो कैश मिला यशवंत जी क्या मिला कैश, एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इन हाउस कमेटी इंक्वायरी करेगी। इन हाउस कमेटी जांच का क्या बेसिस क्या होगा, वर्ड्स हैं वो, ढूंढेंगे क्या बताएंगे। जनता में धीरे धीरे विश्वास कम होता जाए। जनता को लगता है जो प्रॉब्लम है फिर हम सड़क पे आकर के सॉल्व करो। अब जज भी सॉल्व नहीं करते, जज सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? इतना पैसा पब्लिक परसेप्शन पे काफी असर। इस अच्छा खासा पैसा ले रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है ये तो आप वकील साहब लोग से पूछ के सब बता देंगे क्या होता है, क्या कोर्ट के अंदर क्या क्या होता है। आप उनसे पूछिए, वो बड़ा अच्छा बताते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी से, वो तो पूरा डेटा रिकॉर्ड सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को lead कर रहे हैं, वो बता देंगे आपको। करप्ट एंड इनइफेक्टिव जुडिशरी और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, आओ बेल ले जाओ, हम खत्म। पुलिस पकड़ के ले भी, एक तो पहले पुलिस पकड़ती नहीं है, और पकड़ के ले भी आई अगर तो भी वो सेटिंग वेटिंग करके काम खत्म, निकाल दी बात, फिर जाओ क्राइम करो, कोई डिटरेंस ही नहीं है। इट इज नॉट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दैट क्रिएट्स डिटरेंस, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इंपॉर्टेंट एंड विच इज मिसिंग। पुलिस जुडिशरी ओवरऑल मिला करके एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें क्रिमिनल्स को लगता है कोई दिक्कत नहीं, क्राइम हो गया वो कर लेंगे, वो थाने में वो अपना आदमी है वहां देख लेंगे, कोर्ट में वकील पहले से रेडी है, देख लूंगा मैं, बेल दिला दूंगा। एक तरह का इकोसिस्टम बना हुआ है और ये सब मिलके खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट प्रॉब्लम्स। लैक ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मोटिवेशन। अब ये सब बात तो आप जानते ही, लैक ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। पुलिस वाले कितने कॉम्पिटेंट जानते हैं। अभी कुछ साल पहले आपने भी देखा होगा वीडियो था, नहीं ऐसे हैं जिसमें उसमें जो पुलिसमैन है वो पता चला गन लोड करना नहीं जानते, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दिया गया, वो जैकेट नहीं पहना जानते क्या। पुलिस को देखा है सड़क पे फाइट करते हैं कॉमन लेमैन के, कोई एक प्रोफेशनल टच नहीं। वो कई वो खुद को ही डिफेंड नहीं कर पाते हैं, दूसरों को क्या करेंगे। एक स्टूडेंट था वो जो पहले पुलिस में था, निकल से सब इंस्पेक्टर ऐसे फिर छोड़ इसके है वो तो बताया था मेरे को। कहा देखिए ट्रेनिंग जहाँ पे होती है वहाँ भी करप्शन है, पैसे दे दो तो तुम्हें ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। तो फिर इसी ढंग से अब उसकी बात सही नहीं, तो देखा हमने कैसे कैसे हो सकता है कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आप यहाँ पे बन गए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होगा बन गए, आप उसके बाद पता चला आपको गन लोड करना नहीं आता, बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो पहनना आपको नहीं आता, चीज़ें नहीं। कई सारे ऐसे केस हैं जिसमें सेप्सिस की वजह से एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रूडेंस और टेक्निकल करना था, जो लेवल ऑफ अलर्टनेस एग्जिबिट करना था उसने नहीं किया, इसकी वजह से केस खराब हो गया। अब सीबीआई के क्या करेगी? क्या किया था मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह वाले केस, ढिलाई काम में जरूर रही होगी। सीबीआई के क्या कर ली? कुछ। पूरे देश को पता है क्या हुआ, सिर्फ सीबीआई को छोड़। लैक ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड मोटिवेशन। अब मोटिवेशन बात, अधिकतर पुलिस वाले जो है मोटिवेटेड, मोटिवेशन refers to that inner drive and force that propel you towards the desired goal, satisfy, accomplish that goal, satisfy, and the process सबसे बहुत दूर है। अधिक इनर ड्राइव फोर्स बनता ही नहीं।
उनमें पूरी उनकी गलती भी नहीं। सर्विस कंडीशंस जो हैं पे काम करने के उस सर्विस कंडीशन लेवल ऑफ मोटिवेशन को है, तो काम वो अच्छी तरह से करेंगे नहीं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी नहीं, मोटिवेशन कम है, तो क्राइम हो रहा है, क्राइम और बढ़ रहा है। के बारे में करप्शन तो इस लेवल का है कि कई जगह पे क्रिमिनल्स काम कर ही रहे हैं पुलिस के भरोसे। वो पुलिस की वजह से क्रिमिनल जिंदा है, अरे काम कर पाए, कर दे दो और चलो। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, और इन जनरल जानते हैं राइजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कम्युनल वायलेंस, ये सब जो है रीजन है फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रिक्शन। कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, फिर मोर रिजिड कॉन्सियस देन मोर मोर राइट कॉन्सियस सोसाइटी देन ड्यूटी कॉन्सियस। लोग अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा बात करें, ड्यूटी के बारे में कम। ये हमारा अधिकार है, आर्टिस्टिक फ्रीडम है, हम ऐसे मूवी बनाएंगे, हम गॉड गॉडेस को ऐसे दिखाएंगे, कोई भी चीज़ ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल हम ऐसा दिखाएंगे। तो ठीक है, हर समय आर्टिस्टिक फ्रीडम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा भारतवर्ष एक परिवार है। आप एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा नहीं करेंगे उनके नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे, कि लोगों के रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स उनके हर्ट हो रहे हो। थोड़ा इसका ध्यान रखें परिवार का। और आप लोगों को हंसा नहीं सकते, एंटरटेन नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप किसी को दुख नहीं पहुंचाए, तो आप बहुत ही पुअर एंटरटेनर है, खत्म है आप। और फिर आपकी वही दुर्गति होनी चाहिए जो होती। ठीक है, ये सब है। तो पीपल आर राइट कॉन्शियस बट दे आर नॉट सो मच ड्यूटी कॉन्शियस। ये सबके लिए अधिकतर सिटीजन्स भी जो हैं अधिकतर ऐसे ही हैं, ड्यूटी कॉन्शियस कम, राइट कॉन्शियस ज़्यादा। ठीक है, फिर रीजनलिज्म, रीजनल फीलिंग जितनी स्ट्रांग होती है उतना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम फ्रिक्शन होगा। ठीक है, रीजनल पॉलिटिक्स बहुत ही खतरनाक है। जैसे महाराष्ट्र में देखिए, एक आध पार्टी ऐसी है जो चलाती है, मराठा मराठी, मराठी वहाँ कन्नड़ कन्नड़, तमिल तमिल, ये सब करके आपस में लड़ते रहते हैं। फिर उधर से टीम आ जाएगी, इधर से तोड़फोड़ कर लेंगे, यही सब चलता है। और याद रखिएगा, ये फ्रिक्शन कॉन्फ्लिक्ट ये सब जितना अधिक होता है, हमें क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब जितना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो जहाँ तक जाना चाहिए उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, फ्रिक्शन और कॉन्फ्लिक्ट। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कॉन्फ्लिक्ट अगर है, तो आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा पार्ट तो उस फ्रिक्शन को दूर करने में ही जाएगा। तो आप काम क्या करोगे? नेक्स्ट है फोर्सेस ऑफ ट्रेडिशन मॉडर्निटी, हम बता चुके हैं। रीजनलिज्म की फीलिंग है, रीजनलिज्म मतलब ये हो गया कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, दैट विल बी इन जेपार्डी। तो रीजनलिज्म को उतना अधिक बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, इसको रीजनलिज्म को दबाने की बात, हर एक रीजन की डिस्टिंक्ट अपनी पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल आइडेंटिटी है, उसको नर्चर करना चाहिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। बट इट इज नॉट टू बी टेकन टू ए लेवल that you start preaching your people, you start to convince people that first of all we are Tamils or Kannadigs or Bengal, then we are Indians। ये डिक्लेयर करके नहीं होता, लेकिन आपकी हरकतें ऐसी हैं, धीरे धीरे लोगों के अंदर ऐसी भावना अगर पैदा करेंगी तो देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो खैर होना ही है। उसके बाद है पॉलीकम्युनल और पॉलीनॉर्मेटिव सोसाइटी। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है डेवलपिंग कंट्री, वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, दैट सोसाइटी इज पॉली, वी हैव ए पॉलीकम्युनल सोसाइटी, वी हैव ए पॉलीनॉर्मेटिव। पॉली मीन्स मैनी, एक से अधिक ग्रुप्स और कम्युनिटीज, और हर एक ग्रुप कम्युनिटी अपने ग्रुप सेंट्रिक इंटरेस्ट को प्रमोट करती है इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, एंड देन पॉलीनॉर्मेटिव सोसाइटी, मतलब जब ग्रुप्स कम्युनिटीज अलग अलग हैं तो उनके अपने अपने नॉर्म्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स अलग अलग हैं। दैट contributes to friction, conflict, and by consequence law and order problem। वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाता है। सो पॉलीकम्युनल और पॉलीनॉर्मेटिव सोसाइटी। तो पॉलीकम्युनल पॉलीनॉर्मेटिव सोसाइटी, ये जो समस्या है, अलग अलग ग्रुप्स और कम्युनिटीज, अलग अलग नॉर्म्स, कॉन्फ्लिक्ट, एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, एज फार एज पॉसिबल वी नीड टू ब्रिंग अ बेसिक यूनिफॉर्मिटी इन द एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द कंट्री। और एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक कॉमन होगा, उसके अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पढ़ा रहे हैं उसमें नॉर्थ इंडिया के बच्चे राजेंद्र चोला के बारे में पढ़ रहे हैं, और साउथ इंडिया के बच्चे भी जो महाराणा प्रताप के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वैसे ही पढ़। या तो एक एजुकेशन में जहाँ जहाँ चीज़ कॉमन यूनिफॉर्म हो सकती है, सारे बोर्ड्स की आवश्यकता है। और फिर आप कुछ स्पेस छोड़ हर स्टेट के लिए कि वो अपने अपने एडिशन कर ले, जिससे रीजनल कल्चर और ये सब बरकरार रहे। बिल्कुल, वी नीड इन एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, वी नीड ब्लेंडिंग ऑफ
यूनिवर्सल डिजाइन एंड सिचुएशन, जैसे लोकल गवर्नमेंट के अंदर में है यूनिवर्सल डिजाइन, कुछ बातें हैं कॉमनली एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स, ठीक है, एंड देन यू हैव एम्पावर्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ब्रिंग एप्रोप्रिएट चेंज एज पर द peculiar set of problems and challenges in their state. एजुकेशन सिस्टम उस पर काम करना पड़ेगा, एविडेंस मतलब इंटीग्रेटिव फोर्सेस को स्ट्रांग होना पड़ेगा। डिस इंटीग्रेटिव फोर्सेस से जो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनसे ज़्यादा तेजी से काम करना पड़ेगा, इम्पैक्ट के साथ काम करना पड़ेगा इंटीग्रेटिव फोर्सेस को। तो हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो है, एजुकेशन तो बहुत अच्छा रास्ता है, एजुकेशन जो है उसमें जहाँ तक हो सके एक यूनिफॉर्मिटी, उससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म, एक ऑल इंडिया, एक इंटीग्रेटिव वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा, और वो वैल्यू सिस्टम जो होगा उनको एक बेहतर सिटीजन बनाएगा। वो पूरे भारतवर्ष के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, इन सब के बारे में फिर अपना अपना रिलीजन कल्चर फॉलो करें। पता है कि सबसे ऊपर एक इंडियन, और रिलीजन ऐसा नहीं है, धर्म है हमारी कंट्री में, अभी उन दोनों का डिफरेंस हो। तो धर्म है हमारी कंट्री और धर्म एक ही है, और इंडिया के लिए क्या पूरे विश्व के बहुत डिफिकल्ट काम। फिर लोकल ग्लोबल इंटरफेस, तो ये जो है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आज बहुत ज़्यादा एक्यूट, क्योंकि लोकल लेवल पे जो चीज़ें घट रही होती है उनके ग्लोबल लेवल पे लिंक्स हैं, ग्लोबली जो चीज़ें घट रही होती है उसका इम्पैक्ट लोकल लेवल पे देखा जाता है, ठीक है। सो वी sorry, we are living in a very complex matrix of dependencies things operating at global and local level. That's why it is not so easy to deal with law and order problems, ठीक है, it's not so easy, ठीक है, लेकिन इसको टैकल किया। इसके लिए मल्टी pronged एक्शन की, that we focus not only on police and focus on professional competence, skill, tool, technology and various institutions और कोई एडिशन की वो भी कर सकते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन वी हैव टू वर्क ऑन मेनी थिंग्स एक्सटर्नल गवर्नमेंट, to stop the political interference, to work on education, knowledge, to ensure as far as possible, doing away with disparity in income, wealth distribution, lot many things that will contribute to better condition. Nothing like an ideal condition that कोई गवर्नर प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं, ऐसा ना तो कभी हुआ है ना कभी हुआ, बट existing state of affairs can be taken to another better level, अच्छी स्थिति में हम लोग पे काम करने की जरूरत है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट कंट्रीब्यूट टू लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस, ठीक है। इसको टैकल कोई अकेले नहीं कर सकता है, पुलिस लीडरशिप को भी अपना काम करना होगा, पॉलिटिकल लीडरशिप, देन जुडिशरी, देन सिविल सोसाइटी, मीडिया, सिटीजनरी, जितने लोग हैं सब अपने अपने रोल्स को ढंग से प्ले करेंगे, देन ओनली वी कैन डील विद दिस प्रॉब्लम। लॉ एंड ऑर्डर challenges and problems are too complex to be left to be taken care of by police alone। ये पुलिस के साथ ज्यादती होगी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुलिस ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन पुलिस का एक लीडिंग रोल है, इसमें कोई डाउट। पुलिस लीडरशिप को जागना होगा, जो पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना इक्वेशन समझाए। पुलिस रिफॉर्म्स इतने वर्षों में क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं होने, जो पावर में है ना तो जुडिशरी चाहेगी और ना पॉलिटिकल लीडरशिप चाहे, आप लोग ऊपर बैठे हैं उनके लिए ढुलमुल पुलिस बहुत अच्छी, उनके लिए पुलिस बहुत अच्छी है। इतना सारा केस देखने के बाद भी पुलिस चुपचाप अपने आराम से बैठी है, अगले आदेश का पालन कर रही है, अगला आदेश जो मिलेगा एकदम रोबोट हो, कभी ए डायरेक्शन मिलेगा बस वैसे। दोज हु derive net advantage from the existing state of affairs and things, they never support they never support reforms, and sometimes they end up doing everything possible to restrict the possibilities of. Thank you very much.